Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन की मैं झलक जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पढ़ के ही या तो समझ या तो ना समझ में आएगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके पहले जो मुद्दे मैंने डिस्कस किए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, वो पूरी कहानी और वो सारे किरदार और सारी वेराइटी एक साथ में आ चुकी है। फाइन, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं पूरा पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख, ₹20 लाख न्यू कैपिटल। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये उसकी वैल्यू है। एक शेयर कितने का है? ₹100। तो इफ़ आई टेल यू एनी प्रोफेसर विल 1 शेयर फॉर 100, तो 20 लाख के कितने शेयर्स आ जाएगा, या 20 लाख में कितने शेयर्स आ जाएंगे? आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ अ वेरी सिंपल डिविजन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 1 शेयर ₹100, 20 lakh rupees, how many shares? So it is 20 lakh divided by 100, and when you do that you will get the number of shares जो इनको बेचने हैं, which is 20,000. I repeat, how do you get 20,000 equity shares? 1 share ₹100, 20 lakh, how many shares? 20 lakh divide by 100, आपको आएगा कि ये कंपनी को 20,000 शेयर्स बेचने हैं। ओके, ये एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब कंपनी इतनी कॉन्फिडेंस रखती है कि 100 नहीं, हमको तो 120 मिलेगा, 20 रुपया ज़्यादा। इसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेएबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 10 रुपया आ जाएगा। 40 ऑन अलॉटमेंट, बट एंड 10 प्रीमियम, 40 रुपीज़, 10 रुपया ज़्यादा, ये होगा अलॉटमेंट के टाइम पे। 50 ऑन फाइनल कॉल, 10 ऑन प्रीमियम। सो जब आप अलॉटमेंट करो 10 रुपया ज़्यादा लो, जब आप फाइनल कॉल करो, जो फर्स्ट एंड फाइनल है क्योंकि एक ही कॉल है, तभी भी 10 रुपया ज़्यादा लो। सो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व प्रीवियसली, नॉट दिस प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स जहाँ पे प्रीमियम था, बट वो सिर्फ एक बार लिया गया था, आज 2 बार हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-3 बार ले लो, वो आपकी मर्जी है, बट उस जर्नल एंट्री के आस्क में हमें प्रीमियम फिट करना पड़ेगा। आज 2 बार होगा।
द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। अरे हमको 20,000 बेचने हैं, पब्लिक मांग रही है 26,000, 6,000 ज़्यादा, क्या करूँ यार, रिफंड करके रिजेक्ट कर दो या प्रो राटा एडजस्ट करो। इन्होंने क्या किया, द एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ एग्रीमेंट, 6,000 एक्स्ट्रा मांगे, 2,000 ठेंगा दिखा दिया, नहीं, हमको आपके साथ कोई लेना देना नहीं, आपका पैसा रखो, चलो घर जाओ, 2,000, बाकी का 4,000 का क्या, पढ़ो। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, देखो 26,000 से 6,000 को आप मना करोगे, सॉरी 2,000 को, तो 24,000 बचे। अब ये 24,000 को आप हैंडल कैसे करोगे, आपको 20,000 ही शेयर्स देने हैं, तो आप प्रो राटा टेक्निक यूज करोगे। कहा है ऑन प्रो राटा बेसिस। ये क्या है, कैसे आप 20,000 एप्लीकेशंस को 24,000 एप्लीकेशंस को 20,000 दोगे। देखो किसी ने 10 मांगा है ना, उसको 6 दे दूंगा, किसी ने 30 मांगा है 30, उसको 20 दे दूंगा, किसी ने 200 मांगा है उसको 120 दे दूंगा। तो क्या है ना, पूरा हाँ और पूरा ना मैं नहीं करूँगा, जिसकी वजह से सामने वाला गुस्सा नहीं होगा। जिसके साथ में हमको कोई रिश्ता नहीं रखना, उसका तो हमने पैसा ही लौटा दिया, रिफंड 2,000 शेयर्स का। बट बाकी के लोग को हमको घर नहीं भेजना, तो उन्होंने बोले नहीं सर रुको, आप जितना मांगते हो ना सर, मैं थोड़ा आपको शेयर्स कम देता हूँ, और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा आप मुझे देते हो एप्लीकेशन के टाइम पे, वो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या किया जाएगा, वो एडजस्ट किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्यों, बिकॉज मैंने अलग प्रॉब्लम में रिफंड और अलग प्रॉब्लम में एडजस्ट, आज दोनों कॉम्बो में पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज द क्वेश्चन हैज अकॉर्डिंगली बीन फ्रेम्ड। All money due on allotment and final call was duly received. Make necessary journal entries. जी, सबसे पहली बात तो let me show you the very important calculation. What is that? 26,000 shares have been applied for, but only 20,000 shares का पैसा आप रख सकते हो। 2,000 का आपने बोला पैसा रिफंड करो, 4,000 का आपने क्या बोला, भैया रुक जा एडजस्ट करता हूँ, तो ये 40,000 रुपया एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट 10 लाख का और फाइनल कॉल 12 लाख। बट प्लीज़ नोट, ये 50 है, इसमें 40 + 10 है, ये 60 है, इसमें 50 + 10 है। मैं रिपीट करता हूँ, 50 में 40 + 10, 40 इज़ फॉर द कैपिटल, 10 इज़ फॉर द प्रीमियम, एंड इन दिस 60, 50 इज़ फॉर द कैपिटल, 10 इज़ फॉर द प्रीमियम। What do I mean? Let's start. पहले से लेकर आखिर तक जो स्क्रीन है ना, आंखें गड़ाए रखना और कान भी खुले रखना एंड अंडरस्टैंड। बाद में आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना। रिसीव वाली एंट्री क्या है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,60,000। सुपर, ये हो गया। ये है 26,000 एप्लीकेशंस पे 10 रुपीज़। अभी जब मैं करता हूँ आस्क, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। यार मैंने तो इतने नहीं मांगे थे, मैंने तो बस 2 लाख रुपए, मतलब 20,000 इंटू 10। तो एक काम करो, एप्लीकेशन में आप तो लिखोगे 2,60,000, बट कैपिटल में ओनली 2 लाख। बाकी का एक्स्ट्रा 60,000 का क्या, आपने 20,000 रिफंड करने का डिसाइड किया, वो बैंक में लिख दिया, एंड बाकी 40,000 आने वाले बिल के साथ, ये दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट, आप एडजस्ट करने वाले हो। सर कहाँ पे बोला था उन्होंने, बोला नहीं था। प्रो राटा मीन्स दैट कि जो पूरा ना पूरा हानि करते, एक्स्ट्रा पैसा कंपनी की जेब में आता है, वो लौटाते नहीं है, क्योंकि वो लौटाते नहीं है, वो अगले बिल में 40,000 एडजस्ट करेंगे। नरेशन की कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है, बिकॉज आपको बोलना पड़ता है कि 20,000 शेयर्स पे पैसा आपने कैपिटल में, 2,000 एप्लीकेशन पे आपने रिफंड किया और 4,000 एप्लीकेशन पे आपने एडजस्ट किया। तो इट डज टेक लिटिल स्पेस, बट प्लीज़ वो पूरी रामायण कहानी लिख लेना। नाउ कम्स अलॉटमेंट। बिंदास आप आस्क करो 10 लाख, प्लीज़ नोट दैट इज 40 + 10, 50 रुपीज़। अच्छा,
10 लाख मांग लिए, उसका एंट्री मैंने कर लिया, विच इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, 8 लैक्स कैपिटल में गया, 2 लैक्स प्रीमियम में। आई रिपीट, मैं थोड़ा ये वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज दिस? सो प्लीज पे अटेंशन अबाउट दिस इज द आस्क। अलॉटमेंट का जो आस्क है वो 2 बहानों के वजह से है, कैपिटल एंड प्रीमियम। द प्रीमियम इज 20,000 इंटू 10 विच इज 2 लाख। तो बाकी का पैसा 40 रुपीज कैपिटल में जाने वाला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं, मैं थोड़ा फास्ट गया था तो बस मैंने गाड़ी पीछे ले ली और वो आपको रिपीट करके बता दिया कि ये टाइम है प्रीमियम मांगने का। मांग लिया जी मैंने, और अकॉर्डिंगली जो नरेशन था वो लिख लिया दैट 40 रुपीज पर शेयर ड्यू है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। दिस एंड द नेक्स्ट एंट्री इज द रिसीव एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मांग रहे हो 10 लाख, मिलेगा नहीं, क्यों? अरे एप्लीकेशन के टाइम पे 40,000 जो हमारी पब्लिक है उन्होंने तो पहले से ही ज़्यादा दी थी, तो फिर वो रिपीट नहीं करेगी वो पैसा। तो जब आप रिसीव करते हो विच इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, डोंट एक्सपेक्ट 10 लैक्स। तो वो कितना आएगा? अरे भैया 40,000 कम आएगा, 9,60,000 या वट एवर आपका गणित बैठता है। मतलब बैठना तो यही चाहिए इस वाले प्रॉब्लम में, बट यू हैव टू रिमेंबर कि एडजस्ट करके आपको पैसा मिला, पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। सो प्रीमियम आस्क की एंट्री में आया, रिसीव में एडजस्ट करके आया। अब आएगा आपके कॉल का, जो एक लौता ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप बोल सकते हो, उन्होंने तो फाइनल कॉल ही बोला है। आस्क कर लो, बट रिमेंबर इन दिस ऑल्सो कि इट इज 50 प्लस 10। सो 50 रुपीज के हिसाब से आप 10 लाख रुपया कैपिटल में डालोगे और 10 रुपीज के हिसाब से आप 2 लाख रुपया प्रीमियम में डालोगे। तो अगेन ये भी जो आस्क है, ओके, मांगना, ये 2 रीजंस की वजह से आप आस्क कर रहे हो, विच इज वेरी सिमिलर टू द अलॉटमेंट आस्क। रिसीव करने के टाइम पे कोई भी ड्रामा, बवाल, झंझट ऑफ एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे होता है, बराबर। एक्स्ट्रा पैसा बच नहीं जाता है। अभी आपने 12 लाख मांगा, बड़ी ईमानदारी से आपको 12 लाख रुपया मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो जी वो भी एक चक्कर होता है, बट वो चक्कर थोड़ा अलग रहता है जब आपको पैसे मांगने के बाद भी नहीं मिलते। अभी के लिए तो आप बड़ी सिंपली ग्रैंड टोटल जो आता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आप लिख लीजिए, विच इज़ 48,80,000 फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट इसके अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन किया, हमने प्रीमियम किया, ओवर सब्सक्रिप्शन को हैंडल करने के लिए हमने रिजेक्शन एंड प्रोराटा दोनों टेक्निक यूज किए, प्रीमियम को हमने अलॉटमेंट और कॉल दोनों में मिक्स किया, हमने नहीं किया ऐसे पूछा था। सो दिस सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम एक ऐसा है कि पिछले सारे लेक्चर्स का पूरी कहानी इसी सोल्यूशन में आ जाती है, विच आई होप आपको समझ आ गया। अगर आ गया है तो दूसरों के साथ शेयरिंग ज़रूर करें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। बाकी मैं आपको दोबारा जल्द ही मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।